A very good morning, everyone. This is a demo video I'm making for Defense Valla on the topic of Supreme Court of India. Okay, I will be using both the languages, English and Hindi, in this demo video. I am completely proficient in English, but I will be using English and Hindi both for the better understanding. Okay, so let me first give my introduction. My name is Aman Sharma, and I belong to Bhilwara, Rajasthan. On the education perspective, I've done Bachelor of Science from NDSU Ajmer, and Masters I've done MA English, and my final exams are currently running, and which will be ending in Feb only. And from the March, I have this degree as well. Now coming to it, that I'm making this demo video for the Defense Walla. Okay, I don't have the access to digital board right now. That is why I'm using this iPad setup. Okay, now, coming to the exams that I qualified in the defense sector as well as other sector, that's why I'm appearing for this vacancy. So first, I cleared 9 FCAT Air Force Common Admission Test, which for the officers it was also conducted. So 9 FCAT, and I cleared it many with 200 plus exam marks in many attempts. Like 2-3 attempts, I have this 200 plus marks. Like the complete exam is of 300 marks, so 200 marks getting is a big thing. So I have this score in 2 to 3 exams of this FCAT. And one more thing, that I cleared all 9 by 9 of this FCAT, never failed this exam. 6 time I cleared UPC CDS. One time I cleared UPC CAPF. Remember, I only appeared one time for this exam. I cleared that, the 2025 one. 2 time I have cleared Indian Coast Guard Assistant Commandant exam. I also appeared for 2 times only for this exam. And 2 times I have cleared SSC CGL Pre, which include the mains of 2025 as well. I appeared in 2025 mains as well. And one time I cleared SSC CPO Pre as well. Okay, so this many exams I've cleared, so that is why I believe I am the most suitable candidate for this vacancy. Now coming to work experience. So first work experience is of Aravali Coaching Center, Bhilwara. In this coaching center, I worked for 2 to 3 years. Now coming up to it, the main work of me is science plus English, which means that I teach science and English till class 12, till class 10th, which means 9th and 10th basically. And I teach the grammar portion of English as well as complete science. This is what I teach in class 9th and 10th. And for this GS subject, I also teach. Some batches are being made for NDA and other defense exams like Agniveer SSC. So some small batches are being made, and the students who know me that I do clear as many of these exams, they come to me and they ask me that, sir, please can you teach us? For that students, I do teach polity, history, and other subjects like geography as well. Sometimes current affairs, science, and as well as English grammar very much for these exams as well. So I have a good experience of this thing as well. But right now I'm not working with this organization anymore, because on the last of my CAPF attempt, I need much more time to prepare. That is why I leave this organization and completely focused on this exam more. So this is the thing. This second thing, that is this I am working right now as well. Currently working here. This thing, that is as a chess coach in Telencom. This is a part-time job, only 4 hours job, and it gives a good pay amount. So and it requires like timing in the night section, so that's why I'm working here right now. And it gives adequate time to study as well. That's why I'm working as a chess coach. And this also I worked for last 2 years as well. And I do teach here all the students of all the countries, all world countries we teach. Okay, now coming to this question, that why do I want to join the PW Defense Wala? The reason is I wanted to work in defense field. So I got a very good experience in defense field. As you can see that I cleared all these exams. I have experience of 9 interviews, 9 SSB interviews. So a lot of experience and lot of knowledge I gathered while preparing for this exam. So right now I wanted to use it, and I wanted to become a very good teacher in the defense field. First thing, I wanted to have a good career growth, and I believe PW is a great company that can give me. It also give me great exposure. So that's also I wanted to join PW. And lastly, I have a great respect for Alex sir, what he did for all the students of the world, so all the students of India. So that's why I do wanted to work in his company and really wanted to make him proud. Now coming to the thing, that what subjects I prefer to teach.
So here I am coming for polity. Polity is also a great subject that I like. I have not done MA in polity, but I really like this subject, and the subject helped me to clear many exams, including UPSC, APA. And I studied in very detail. That's why I'm coming for polity first. Second is English. English is also one of the main subject that I developed or worked upon after I graduated. So this is again a subject I can teach and very well. English. Geography I can also teach. Science is my core subject, so that I can teach very easily and very good as well. And current affairs I also teach. So these are all subjects I can work upon. I can teach in defense sector without any issue. But right now I'm currently coming for polity and English mainly. So whichever you have the vacancy, you can see me or you can put me upon. I am coming for the Indore. Indore is my first preference and Pune is my second preference. Now coming to the topic, that is Supreme Court of India. So I will be using both the languages English and Hindi. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने आते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट तो पॉइंट यही है कि क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आते भी कि नहीं आते. दैट इज वाई दिस विल बिकम ए इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड नॉट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है. सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. कोर्ट पे आ गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे आ गया, जुडिशियल रिव्यू पे आ गया, लैंडमार्क जजमेंट्स पे आ गया. अब देखेंगे रेट पिटिशंस पे आ गया एंड कोर्ट की बेंचेस पे आ गया. लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन. ये जो वॉट एवर द क्वेश्चंस आई पुट इन, ये लास्ट लाइक 2-3 years के ही हैं. तो हर एग्जाम में whichever exam it is, at least 2 questions we can expect from judiciary. This single topic alone, not from polity, judiciary only. This single topic we can expect at least 2 questions, and easy questions as well, because limited things we have to study and we can get fetch marks upon this. So easy questions as well we can expect, and at least 2 questions we can expect from judiciary. Okay. नाउ कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बना कैसे था, हाउ इट वाज बीइंग मेड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, हाउ जुडिशरी वर्क, हाउ द सिस्टम ऑफ जस्टिस वर्क, क्या ये ओनली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है? इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन दैट इज दिस concept of justice is only a British concept or India also has this system beforehand? Then you will reply, अगर आप थोड़ा सा if you little bit of deep thinking अगर आप करोगे तो then you can easily answer me that sir, ऐसा नहीं है कि जस्टिस के बारे में ओनली ब्रिटिशर्स को पता था, ये तो कंसेप्ट इंडिया में पहले से था. दिस कंसेप्ट आर वेल नोन इन इंडिया. हाउ, इफ आई आस्क यू हाउ दिस कंसेप्ट वाज वेल नोन इन इंडिया, यू विल से मी सर अगर हम देखें तो जस्टिस का सिस्टम तो हमारे इंडिया के कल्चर में पहले से ही है. लाइक अगर पहले के किंग्स भी हुआ करते थे तो उनकी कोर्ट्स के अंदर भी इन देयर कोर्ट्स एज वेल ये जो जस्टिस का सिस्टम हुआ करता था, राइट. वहाँ पर ही जो किंग था वो सजा सुनाता था. ही टुक द कोर्ट हिमसेल्फ एक्चुअली गिव द पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स, राइट. जेल्स भी हुआ करती थी, राइट. उस टाइम पे सारी पावर्स किंग के पास होती थी या किंग के किसी डिपार्टमेंट के पास होती थी, राइट. और उसके बाद भी अगर हम अष्टप्रधान के सिस्टम अगर हम देखें, अष्टप्रधान अगर आपने सुना होगा, अष्टप्रधान 8 इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, तो ये जो सिस्टम था अष्टप्रधान का ये मराठा एम्पायर में भी था, राइट. एज वेल एज ये मुगल्स में भी ये सिस्टम देखा गया है. तो ये जस्टिस का सिस्टम तो इंडिया में पहले से ही था, राइट. पंचायत भी शुरू से ही हुआ करती थी, राइट, काफ़ी टाइम से. तो ये जस्टिस का सिस्टम इज ऑलवेज दिया. ठीक है. हम देखते हैं ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम, हाउ इट केम टू इंडिया. तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट केम टू इंडिया. तो सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर राज्य स्टार्ट हुआ, हाउ दे स्टार्ट रूलिंग अस एंड हाउ दे स्टार्ट कैप्चरिंग मोर एंड मोर एरिया. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें बहुत सारा मिसमैनेजमेंट था. इसमें जो गवर्नर था, दैट गवर्नर एक्चुअली वर्क एज बोथ, ही वाज द लेजिस्लेटिव हेड एज वेल, ही वाज द जुडिशरी हेड एज वेल. मतलब जो भी इसके पास आती थी इसी को सॉल्व करनी होती थी. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को भी जस्टिस का इशू है, किसी को भी किसी के साथ इशू है, तो वो इसी के पास लेके आया करते थे. देयर इज अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1973 लाए, जिससे इसको थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश की गई. उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर. सबसे पहले whenever somebody asks you that where does the Supreme Court is established first time,
please tell them the Calcutta is the place where the first time the Supreme Court is being established. Okay, in 1773 by the Regulating Act of 1773 with full jurisdiction and authority. But इतना jurisdiction इसके पास था नहीं. It was under the Governor General. And remember, जो पहले Governor General जो बनाए गए थे बंगाल के, through this act only, that was Warren Hastings. The important data है, you have to remember this. Okay, it can directly come in the exam that first Governor General of Bengal was being made as Warren Hastings through Regulating Act of 1773. And this Supreme Court, you can also see the picture as well, right? It was formed to hear and decide all criminal charges as well as to entertain and hear and decide all the cases proceedings in Bengal, Bihar and Odisha. अभी आप सोचोगे कि सर ये तीनों ऑप्शंस क्यों, लाइक बंगाल तो हम समझ गए कि बंगाल में कलकत्ता में इस कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हाई बिहार एंड कलकत्ता उड़ीसा. तो ये जो कंप्लीट जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की, कंप्लीट बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आते थे ये तीनों पार्ट. ये एक ही पार्ट का हिस्सा थे बंगाल प्रेसिडेंसी का. दैट्स व्हाई बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा अंटिल दे आर डिवाइडेड. ओके, उसके आप बाद देखेंगे दैट्स आफ्टर दिस 1773, आफ्टर सम इयर्स इन 1800 एंड 1823 जो किंग जॉर्ज थर्ड थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया मद्रास में एंड बॉम्बे में, विच मीन्स दैट 1800 के अंदर it was established in Madras and 1823 के अंदर it was established in Bombay. Very very important. Directly इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है, हो सकता है कि बॉम्बे के साथ it can write as 1800 and 1823 it can write as Madras. So please remember this. Okay, small facts we have to remember. Now हम देखते हैं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमेशा से तो ऐसा था नहीं, तो आज का सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बना है. सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. दिस वाज द लैंडमार्क एक्ट एंड इट एक्चुअली मेड द बेस ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, उस टाइम पे जो इस एक्ट ने बात की थी, इट टॉक्ड अबाउट द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. उस टाइम पे उसका नाम उसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया रखा था. एंड इट वाज द एस्टेब्लिश्ड एज द इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन. इंडिया का पहला सेंट्रल मतलब सभी के ऊपर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको फेडरल कोर्ट को इसने एस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. ठीक है, एंड फेडरल स्टेट्स हैड जुरिस्डिक्शन टू सॉल्व फेडरल डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस. उस टाइम पे प्रोविंसेस जो हुआ करती थी एंड फेडरल स्टेट्स जो हुआ करते थे, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स थे वो ये सब वो इट कैन आल्सो हियर राइट हियर अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एज वेल. तो जो भी हाई कोर्ट, लाइक कलकत्ता में एक हाई कोर्ट हो गया, मद्रास में हो गया, बॉम्बे में हो गया, इन सभी की जो केसेस था वो ये इट कैन आल्सो हियर. ओके, एंड इट कम्स एज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या है, ये हम एक ट्राइंगल के रूप से समझ सकते हैं. सबसे ऊपर जो होगा सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके अंदर बहुत सारे हाई कोर्ट आएंगे इसके नीचे. जैसे अभी भी इंडिया के अंदर यही सेम सिस्टम फॉलो होता है राइट. सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट. लाइक इंडिया के अंदर देयर इज अ हाई कोर्ट इन राजस्थान, देयर इज अ हाई कोर्ट इन बॉम्बे, देयर इज अ हाई कोर्ट इन मद्रास, देयर इज अ हाई कोर्ट इन भोपाल लाइक यूपी राइट. सो दिस ऑल हाई कोर्ट्स कम अंडर द सुप्रीम कोर्ट. और उसके बाद सारे लोअर कोर्ट्स उसके अंदर आएंगे. तो लाइक लोअर कोर्ट के ऊपर हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट, एंड लोअर कोर्ट के नीचे कौन आ जाएगा, लोअर के कोर्ट के नीचे जाएंगे पंचायत राइट. तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम आज भी इंडिया में यूज होता है, इज बीइंग लाइक मेड थ्रू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. एंड ऑल द लोअर कोर्ट्स फ्रॉम ग्राम पंचायत टू हाई कोर्ट एंड इंक्लूडेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ. तो ये जो कोर्ट था, ये इसका नाम था फेडरल कोर्ट. रिमेंबर, इसको कंफ्यूज नहीं करना है हमारे अभी के सुप्रीम कोर्ट से. ये फेडरल कोर्ट था, इसका नेम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, सेम ही बात है, बट इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया. ठीक है, आफ्टर रिप्लेसिंग दिस फेडरल कोर्ट, इस फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके, और साथ ही साथ में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, एक ये काउंसिल थी बॉडीज ऑफ मेंबर्स, और ये भी डिसाइड करते थे कुछ चीज़. इन दोनों को रिप्लेस करके हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ इंडिया है, वो एस्टेब्लिश किया. तो इस फैक्ट से एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, दैट अगर मैं आपसे कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज़्यादा पावरफुल था या ये फेडरल कोर्ट ज़्यादा पावरफुल था, एंड यू विल सिंपली से मी सर
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इसने रिमूव किया या इसने रिप्लेस किया है इन दोनों चीज़ को, एक फेडरल कोर्ट को भी रिप्लेस किया है, साथ ही साथ में इसने रिप्लेस किया है ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को भी. दैट्स वाई वी कैन सिंपली से दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मच मोर पावरफुल देन द फेडरल कोर्ट, राइट. रिमेंबर ये डेट तुमको याद रखनी है. इट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1953, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है. इसी दिन इट वाज आल्सो बीइंग एस्टेब्लिश्ड एंड फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी 28 जनवरी, आफ्टर 2 days 28 जनवरी. तो ये डेट भी हमको याद रखनी है. This can directly come in exam. Okay. And the jurisdiction, again, the thing that I was only discussing with you, that the jurisdiction of Supreme Court is greater than the federal court, right? बहुत सिंपल है, क्योंकि इसने प्रीवी काउंसिल को भी तो रिप्लेस किया है, राइट. दोनों को रिप्लेस किया है, फेडरल कोर्ट को भी किया है, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को भी किया है. दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मच मोर पावर्स है देन एनी फेडरल कोर्ट. एंड रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. तो ये जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल थी, इसमें अपील्स हुआ करती थी, राइट. इसी के थ्रू अपील्स हुआ करती थी. आज अगर आपको अपील करनी है, मान लीजिए यू आर फाइटिंग ए केस इन हाई कोर्ट एंड द जजमेंट केम अगेंस्ट यू, जजमेंट आपके खिलाफ आ जाए, तो आप कहाँ जाएंगे, आप किससे शिकायत करेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है? यू विल ओनली गो टू सुप्रीम कोर्ट. दैट इज व्हाट हाउ वी कैन डू द अपील, राइट. अब हम आर्टिकल्स में आ जाते हैं. तो इट कम्स, सबसे पहले हम देखते हैं, इट कम्स इन पार्ट 5. सबसे पहले हमें पार्ट 5 याद रखना है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, टू एक्सप्लेन इट मोर और टू अंडरस्टैंड इट मोर. जैसे कि पार्ट 3 जो है वो आता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, पार्ट 4 जो है वो आता है डीपीएसपीस के लिए. सिमिलरली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो पार्ट 5 का पार्ट है. ओके, ये बात आपको याद रखनी है. एज वेल एज ये आर्टिकल 124 to 147, ये भी हमको याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 to 147. एंड यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो भी आर्टिकल है 124 to 147 में, ये सारी पावर्स इनके अंदर आती हैं. रिमेंबर, हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को उनकी पावर्स के साथ आगे जरूर देखेंगे कि स्पेशली लाइक ये चीज़ किस आर्टिकल में है, लाइक इंडिपेंडेंस किस आर्टिकल में है, और ये चीज़ें किस आर्टिकल में, वी विल डेफिनेटली सी, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन इस चीज़ से आ जाता है. ठीक है, अब कंपोजिशन की बात करते हैं. तो स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था ऑन 26 Jan 1950, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की स्ट्रेंथ थी, राइट, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 7 अदर जजेस थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगेन. अब जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, जस्टिस का सिस्टम भी बढ़ा, एज वेल एज मोर नंबर ऑफ केसेस आते गए, उसी तरीके से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या भी बढ़ी है. नॉट दैट मच, उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी. इसीलिए भी अभी हम अभी भी देखें तो बहुत सारे केस पेंडिंग है, लॉट ऑफ केस पेंडिंग आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, राइट. बट फिर भी अगर हम देखेंगे तो संख्या बढ़ी है, राइट. कैसे बढ़ी है? जैसे 10 थी, इट वॉज 10 in 1956. तो सबसे पहले 8 जो थी वो थी 1950 के अंदर. 1956 आते आते 10 कर दी गई. Then 13, 3 more increase in 1960, 17 like 4 more increase in 1977, till 25 means 8 more increase in 1986, till 30 means 5 more increase in 2008, and then 3 more increase in 2019, and this is the right now. This is what we are right now. 33 judges plus 1 CGI. ये स्ट्रक्चर अभी भी है, विच मीन्स अभी के कोर्ट में आज के टाइम पे 34 जजेस प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर 1 CGI है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 33 जजेस आर देयर, राइट. ये आज के टाइम की कंपोजिशन है. तो ये आपको याद नहीं करना है, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए था. तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, इतना फैक्चुअल नहीं पूछता है. नेक्स्ट कम टू अपॉइंटमेंट. सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट से पहले देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट. ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या जरूरी है. सबसे पहले अभी की जो रूलिंग है वो समझते हैं कि अपॉइंटमेंट होगा कैसे. सुप्रीम कोर्ट रूल डेट, खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही रूल किया. किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने. अब ये कैसे रूल किया, आई विल कम टू इट लेटर ऑन. सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सीनियर मोस्ट
remember, senior most judge of the Supreme Court should alone, very very important, alone be appointed to the office of Chief Justice of India. तो जो कि 34 जजेस में से एक CJI हैं, उसके लिए ये चीज़ लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने रूल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि ओनली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही CJI बनना है. ओनली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन अलोन भी बिकम CJI. ठीक है, स्टेटमेंट पर वापस आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे हुआ ये हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशंस पहले हम देख लेते हैं. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, पहले हम वो देखते हैं. ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, राइट. ही और शी शुड बी हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स. तो ये हमें याद रखना है कि जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स होना चाहिए. या फिर एडवोकेट. अब एडवोकेट छोटी टर्म हो गई, जज बड़ा होता है, एडवोकेट छोटा होता है, तो एडवोकेट कम से कम 10 ईयर्स, राइट. वो भी हाई कोर्ट के. एडवोकेट भी हाई कोर्ट के 10 ईयर्स. ठीक है, या फिर जज हाई कोर्ट के 5 ईयर्स. या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इजीली रिमेंबर भी हो जाता है, लाइक ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट के अनुसार या प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है. डिस्टिंग्विश्ड मतलब बहुत ही होशियार या बहुत ही डिफरेंट या बहुत ही एबल पर्सन ऑफ जुडिशरी नॉलेज वाले हैं. देन प्रेसिडेंट कैन एक्चुअली अलाउ हिम टू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज. बट यहाँ पर आपको याद रखना है, इन सभी के बीच में और लगा हुआ है, राइट, स्मॉल और यू कैन सी. इसका मतलब है अगर वो हाई कोर्ट, इन तीनों में से अगर वो एक भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो शी कैन बिकम ए सुप्रीम कोर्ट के जज. अगर हाई कोर्ट के 5 ईयर्स अगर उन्होंने हाई कोर्ट में 5 ईयर्स तक उन्होंने जज रहे हैं तो ही कैन बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज. हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक अगर एडवोकेट रहे तो ही कैन बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज. और अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में अगर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, ही कैन आल्सो बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है मिनिमम एज. कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर प्रिस्क्राइब्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर सेड ए मिनिमम एज. इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कल को कोई 30 ईयर का पर्सन है जिसने 5 ईयर्स मान लीजिए हाई कोर्ट में एज ए जज सर्व किया है. अब ओनली इज बिकॉज 30 ईयर्स, जिसकी एज बहुत कम है. आपने देखा होगा कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो अराउंड 50 ईयर्स के आसपास तो होते ही हैं एटलीस्ट मिनिमम, राइट. तो क्या हम इनको मना कर देंगे कि नहीं आप बहुत छोटे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते? नो, मना नहीं कर सकते, राइट. अगर ही वाज एलिजिबल बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड वन ऑफ द कंडीशन, दैट इज 5 ईयर एज ए हाई कोर्ट जज. Very very important. Okay, so no minimum age criteria for appointment as a judge of Supreme Court. Now remember, UPSC like this kind of facts. UPSC really like this kind of fact जहाँ पर वो extreme statement पूछ रहा हो and then he will see that the candidate will likely to say no. Candidate को लगेगा कि कुछ ना कुछ तो मिनिमम एज करी होगी, राइट. जैसे मिनिमम प्रेसिडेंट के लिए भी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, तो इनके लिए भी कोई ना कोई मिनिमम एज होगी. ऐसा नहीं है, इनके लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओथ कौन दिलाते हैं? द ओथ इज बीइंग मेक को सब्सक्राइब ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट या सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हर. ठीक है, एंड सैलरीज इनकी पार्लियामेंट डिसाइड करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आर्टिकल 360 ये बोलता है कि इनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती ड्यूरिंग देयर टर्म एक्सेप्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो ये इमरजेंसी पर जब हम आएंगे तब ये समझेंगे. ठीक है, हाँ, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं. टर्म्स ऑफ जज का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे कोई व्यक्ति PM बनता है या जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट बनता है, तो ही एक्चुअली बिकम्स ए प्रेसिडेंट ओनली फॉर 5 ईयर्स, राइट. 5 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली he will has to sit down. उसके बाद वापस से इलेक्शन होते हैं and that election will decide that who will become the next president, right. इसी तरीके से चलता है. प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इसी तरीके से चलता है. बट इनके लिए ऐसा नहीं है. नॉट फिक्स्ड टेन्योर ऑफ टेन्योर. लाइक अगर ये मान लीजिए 50 ईयर्स के एज में दे बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज,
then they can stay. They can stay till which year? They can stay and they can hold office till the age of 65 years. 65 years तक they can hold the office. Very very important. ठीक है, रिमेंबर हाई कोर्ट के लिए ये 62 है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। हम हाई कोर्ट में जब पढ़ेंगे वी विल सी। ओके, एंड ही एंड शी कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रिजाइन करना है तो हमेशा अपने ऊपर वाले ऑफिस के लिए। बात मोस्ट पॉलिटी में एक्सेप्टेबल है कि हमेशा ओनली वन केस में ये डिफरेंट होता है, दैट इज टू द स्पीकर के केस में डिफरेंट होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। ठीक है, बट नॉर्मली जब वेन एवर वी आर रिजाइनिंग टू द हायर ऑफिस, तो प्रेसिडेंट, एंड ही एंड शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कभी भी कुछ भी रिकमेंड कर देगी। इट इज हैव ए प्रोसीजर, इसका एक प्रोसीजर है, एंड वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसीजर है, टफेस्ट। दैट इज वाई अगर आप मान लीजिए गूगल करते हैं, इफ यू ट्राई टू गूगल अप दैट हाउ मेनी के कितने सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक इम्पीच किया गया या निकाला गया, यू विल फाइंड दैट नन हैज बीन इम्पीच्ड। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक इम्पीच नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इट वाज द टफेस्ट प्रोसीजर एवर अवेलेबल। ओके, इन द कंप्लीट पॉलिटी अगर किसी को मोस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है देन इट शुड बी सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, नाउ कमिंग टू रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ जजेस ओनली 2 ग्राउंड्स होते हैं। सबसे पहले ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है, ओनली द 2 ग्राउंड्स, सिर्फ 2 ही चीज़ों पे आप इनको रिमूव कर सकते हो, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर सर्विस वेल, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली रिमूव देम। एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर का मतलब है कि मान लीजिए किसी करप्ट प्रैक्टिस में करप्शन किया हो, करप्ट प्रैक्टिस की हो, इस तरीके का प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रूव्ड है, अनप्रूव्ड को लिए आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, प्रूव्ड होना चाहिए। नाउ लेट्स सी, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ऑर्डर, आफ्टर एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट एज इन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमें केस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इन्होंने करप्शन किया है, एंड दैट करप्शन कम्स टू द न्यूज़। इसके बाद पार्लियामेंट ने सोचा कि लेट्स रिमूव हिम। ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक मोशन आएगा, इट कैन कम इन बोथ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। उस मोशन पे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इसको पास होना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। रिमेंबर, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 की मेजोरिटी, मान लीजिए 300 मेंबर्स हैं उस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर, तो एटलीस्ट 200 को हाँ बोलना पड़ेगा, यस, एंड 200 प्लस मतलब 201 को। रिमेंबर, only in that case, that is why it is so difficult. ठीक है, that is why it is so difficult to impeach any judge of the Supreme Court. A majority of total membership of that house and majority of not less than 2/3 of membership of that house present and voting. Very very important. ठीक है, present and voting का मतलब क्या, उस दिन कितने लोग present and vote कर रहे हैं। ठीक है, very very important, 2/3 of present and voting. ठीक है, that much protection is there for the judge of the Supreme Court. And remember the Judges Inquiry Act 1968 regulates the procedure. तो ये जो एक्ट है, रिमेंबर अगर आप यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कल को कि हाउ वी डिसाइड दैट हाउ द सुप्रीम कोर्ट जज इज गोइंग टू बी इम्पीच्ड, मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ और लिख देता है, देन द क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसमें रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स के थ्रू ही we can remove a Supreme Court judge or impeach a Supreme Court judge. ठीक है, अब रिमेंबर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने करप्शन किया था एंड ही वाज बीइंग कॉट ऑन कैमरा, लेट्स से कॉट ऑन कैमरा। उसके बाद उनको रिमूव करने के लिए मोशन लाना है। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर मोशन लाना है
तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। मान लो लोकसभा में आप मोशन ला रहे हो तो 100 मेंबर्स चाहिए ही होंगे स्टार्टिंग में। अगर आपको मोशन लाना है तो 100 मेंबर के साइंड चाहिए होंगे, देन ओनली द मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। उसी के बाद मोशन आ सकता है। और राज्यसभा में ला रहे हो तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स आपको चाहिए होगा टू बी गिवन। उसके बाद आप स्पीकर को प्रेजेंट करेंगे। हाँ, स्पीकर और चेयरमैन के पास भी अपनी पावर है, चाहे तो एडमिट करें चाहे तो मना कर दें, कंप्लीट पावर। ठीक है, वांटेड टू एडमिट एडमिट, वांटेड टू नॉट एडमिट, कंप्लीट पावर है उनके पास। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए उन्होंने एडमिट किया, ठीक है, देन चेयरमैन इज टू कंस्टिट्यूट 3 मेंबर कमेटी। चेयरमैन को 3 मेंबर कमेटी बनानी पड़ेगी। चेयरमैन या स्पीकर को ये 3 मेंबर कमेटी वो चार्जेस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, एंड इस कमेटी में भी कौन लोग होंगे ये कम्प्लीटली डिफाइंड है इस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू। इसमें एक CJI होंगे, चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक तो जरूरी है कि चीफ जस्टिस हो या जज हो, कोई भी हो सकता है, चीफ जस्टिस या जज किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो एक मेंबर ये हो गए, लिख लिया मैंने। नेक्स्ट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। रिमेंबर इतने सारे हाई कोर्ट है हमारे पास, इनमें से किसी भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो तीसरे कोई भी एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कहीं से भी हो सकते हैं। तो ये 3 मेंबर की कमेटी जो होगी ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। एंड इफ दे से दैट यस दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, if this committee finds the judge to be guilty of misbehavior or house, then take up the consideration of the motion। उसके बाद मोशन पास होगा, उसके बाद मोशन आएगा पार्लियामेंट में, एंड इट शुड बी पास विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। इसके बाद भी क्या वो रिमूव हो गए? नहीं, इसके बाद भी ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एंड ओनली व्हेन आफ्टर बीइंग पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेज विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी, व्हेन इट गोज टू द प्रेसिडेंट, व्हेन द प्रेसिडेंट साइन इट, देन इम्पीच। अगर मान लीजिए साइन नहीं किया, कैन नॉट बी इम्पीच। इफ साइन डिडंट गेट डिड अ साइन, देन कैन नॉट इम्पीच। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज सो डिफिकल्ट दैट till now no judge of Supreme Court has been impeached so far. And one more important thing, it is also being made difficult. ये पोस्ट बना, ये being made difficult, ये प्रोसेस इतनी डिफिकल्ट इसीलिए बनाई गई that कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, there should be a complete independence of judiciary. Independence of judiciary. To maintain the independence of judiciary, it was being made. Okay. Seat of Supreme Court Delhi है. Okay. And again इसमें भी ये लिखा है Constitution declares seat of Supreme Court is Delhi, but Constitution also decide. कल को मान लो Constitution को लगता है कि दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा है, it can also say that okay we wanted to work in Mumbai, then the Supreme Court can also shift it to Mumbai. It is also possible. And procedure of the court, the Supreme Court can with the approval of President makes rule. तो Supreme Court के अंदर कैसे काम चलेगा, how the work will done will be decided by Supreme Court only with the permission of President. तो इसकी completely power सुप्रीम कोर्ट के खुद के पास। ओके, नाउ कमिंग बैक, अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट विल डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी थोड़ा लंबा हो रहा लेक्चर, दैट इज व्हाई आई विल कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट। ओके, बट इट इज़ वेरी वेरी, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई विल मेक इट शॉर्ट ओनली। ठीक है, तो अपॉइंट करता है, तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एज वेल एज द अदर जजेस विद द कंसल्टेशन। अब सबसे पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का देख रहे हैं। विद द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज शी डीम्स नेसेसरी। सो इसमें ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बीइंग टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसी लैंग्वेज में इसी तरीके से लिखा हुआ है दैट कंसल्टेशन with such other judges, such judges of the Supreme Court and High Court as she deems necessary। जितने भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से प्रेसिडेंट, she means यहाँ पे प्रेसिडेंट डिस्कस करना चाहें, they can discuss and then they can decide that who will become the president, the chief justice of Supreme Court of India। and again अदर के लिए, अदर जजेस के लिए
remember consultation with CGI obligatory, मतलब CGI से तो बात करनी पड़ेगी, such other judges and the Supreme Court and High Court as she deems necessary. Again same line is written. इसी को again इसी पे कंट्रोवर्सी बहुत सारी क्रिएट हुई, एंड आफ्टर दिस 4 जजेस केस एंड कॉलेज सिस्टम का निर्माण हुआ. दिस कॉलेज सिस्टम वाज मेड आफ्टर दिस ओनली. So this we will study later on, okay, because this only topic will require at least 1 hour if discussed properly. So we will discuss this topic in the next class, okay. From here, so I will be ending up the session here. Very important class, and that's all from my side. Thank you so much.